Students, as we have discussed about molar conductivity, limiting molar conductivity, equivalent conductivity and Collard's law. Today we are going to discuss about the applications of Collard's law. Applications of Collard's law. Collard's law की एप्लीकेशन क्या है? First of all, you must know about the Collard's law again. According to this law, the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of ionic conductivities of cation and anion of that electrolyte, and it is multiplied with the number of ions present in one formula unit. According to Collard's law, we studied about that AX By. For example, this is the formula of an electrolyte. Then limiting molar conductivity at infinite dilution for this electrolyte can be written as A is the cation, B is the anion, X number of cation, Y number of anion. Then it can be written as X lambda naught A plus Y lambda naught B minus. So this was the formula for writing limiting molar conductivity in form of ionic conductivities. Let us take few other examples. For example, lambda m naught for NaCl can be written as 1 into lambda naught Na plus 1 into lambda naught Cl minus. If we want to write lambda m naught AlCl3, it can be written as 1 into lambda naught Al3 plus 3 into lambda naught Cl minus. If we want to write for lambda m naught BaOH whole twice, it can be written as 1 into, क्योंकि Ba1 है, 1 into lambda naught Ba2 plus 2 into lambda naught OH minus. In this way we can write for other examples or for other electrolytes also. So first application is calculation of limiting molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes. इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पर weak electrolytes. As you know, when we studied about plot of lambda m naught, lambda mc and under root c, then we found that for weak electrolyte it is not possible to calculate lambda m naught value from the graph, because lambda m naught value weak electrolyte के लिए जो ग्राफ में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो कर्व जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाती है. इट नेवर टचेज वाई एक्सिस पे कभी टच नहीं करती. तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्बडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. देन बाय यूजिंग द कोलार्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द लैम्बडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. कैसे? लैम्बडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लैम्बडा एम नॉट वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. मैंने क्या बोला है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्बडा एम नॉट वैल्यू को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्बडा एम नॉट वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट अस टेक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू कैलकुलेट लैम्बडा एम नॉट वैल्यू फॉर CH3COOH एसिटिक एसिड, अगर हम इसके लिए लैम्बडा एम नॉट वैल्यू निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? इट कैन बी कैलकुलेटेड by using strong electrolytes like कौन कौन से?
CH3COONA, sodium acetate, HCl and KCl, HCl and NaCl। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें। लैम्बडा एम नॉट CH3COOH, इट कैन बी रिटन एज लैम्बडा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट H प्लस। लैम्बडा एम नॉट CH3COONA, इट कैन बी रिटन एज लैम्बडा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट Na प्लस। लैम्बडा एम नॉट NaCl कैन बी रिटन एज लैम्बडा नॉट Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट Cl माइनस। लैम्बडा एम नॉट फॉर HCl कैन बी रिटन एज लैम्बडा नॉट H प्लस प्लस लैम्बडा नॉट Cl माइनस। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, इन सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कोलास लॉ का यूज करके एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। देन वी कैन कैलकुलेट इट एज फॉलोज। लैम्बडा एम नॉट फॉर CH3COOH कैन बी रिटन एज, दिस इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट H प्लस। हमें ये कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस बाय यूजिंग कोलार्स लॉ। अब हमें क्या करना है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हमने लिए हैं, इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट का यूज इस तरीके से करना है कि हमारे पास ये इक्वेशन बच जाए और रिमेनिंग जो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोलाइट्स में जो भी आयन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उनकी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और रिमेनिंग जो बचेगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, लैम्बडा नॉट CH3COO माइनस प्लस, हम देखो CH3CO माइनस किस में, इसमें से इसमें है, तो हम लिखेंगे CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट Na प्लस। प्लस में क्या लिखेंगे, H प्लस किस में है, H प्लस इसमें है, तो इट कैन बी रिटन है प्लस में लैम्बडा नॉट H प्लस प्लस में लैम्बडा नॉट Cl माइनस। अब ये जो दोनों आयन जिसमें थे उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को हमने लिख लिया। अब जो तीसरा बच गया रिमेनिंग, माइनस क्या लिखेंगे, लैम्बडा नॉट Na प्लस और माइनस लैम्बडा नॉट Cl माइनस। इसको ऐसे लिख दें या फिर माइनस करके ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे फिर दोबारा, इट कैन बी रिटन एज लैम्बडा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट H प्लस प्लस लैम्बडा नॉट Cl माइनस माइनस लैम्बडा नॉट Na प्लस माइनस लैम्बडा नॉट Cl माइनस। यहाँ से आप देखेंगे Na प्लस ये माइनस में ये प्लस है, इन दोनों कैंसल, Cl माइनस कैंसल, रिमेनिंग क्या बच जाता है हमारे पास, ये बच जाता है। बट हमारे पास इसकी तो वैल्यूज नहीं, इसी को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दोनों आयन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट लैम्बडा एम नॉट CH3COO Na, इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लैम्बडा एम नॉट HCl, और माइनस में क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा एम नॉट NaCl। So we can have final equation CH3COOH is equal to lambda m naught CH3COONA plus lambda m naught HCl minus lambda m naught NaCl. So you can see clearly from this equation that lambda m naught limiting molar conductivity for weak electrolyte at infinite dilution can be calculated by using the limiting molar conductivities of strong electrolytes. This is very important, CBSE में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। Now we are going to
टेक ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के बेस्ड हम जो है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो सोल्व करते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो CBSE में बहुत बार जो रिपीट हो चुकी है। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम इज इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा m नॉट बोलते हैं। ऑफ NaCl, HCl एंड CH3CONA। CH3CONA क्या है, सोडियम एसीटेट, आर 126.4, 425.9 एंड 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। Then what will be the value of lambda m naught for CH3COH और HAC। HAC होता है एसिटिक एसिड, H रिप्रेजेंट कर एसिड में प्रेजेंट H है। तो हमें क्या है कैलकुलेट करना है, लैम्बडा m नॉट CH3COOH को कैलकुलेट करना है। तो लैम्बडा m नॉट CH3CH की फ्रॉम कोलास ला क्या एक्सप्रेशन बनेगा, CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट H प्लस। ये हमारे जो है एक्सप्रेशन है जो हमें कैलकुलेट करना है। गिवन क्या हमें गिवन है, लैम्बडा m नॉट NaCl इज इक्वल टू 126.4, लैम्बडा m नॉट HCl इज इक्वल टू 425.9, लैम्बडा m नॉट CH3COONA is equal to 91 Simon centimeter square per mole. As we have already discussed about this problem, so we are directly putting values to the given equation। जो हमारे पास इक्वेशन आई थी इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो इसमें हम देखेंगे तो करना क्या होता है, ध्यान से देखें कि जो भी एक्सप्रेशन आता है उसमें जो भी कैटायन या एनायन है, ये एनायन है ये कैटायन है, जो भी कैटायन या एनायन है तो गिवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो भी कैटायन या एनायन प्रेजेंट हैं तो उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू को ऐड करेंगे और जिसमें इनमें से कोई भी आयन नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो हम देखें कैसे, इट कैन बी रिटन एट लाइक दिस। तो मैंने बोला है कि ये आयन किस में है, CH3CO माइनस CH3CONA में है, तो इसको लिखा। H प्लस किस में है, HCl में, इसको लिखा, दोनों को ऐड कर दिया। और NaCl में क्या, दोनों में से कोई भी आयन नहीं है तो इसलिए क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो लैम्बडा m नॉट CH3CO माइनस Na की वैल्यू क्या है 91 प्लस HCl की वैल्यू कितनी दी है 425.9 माइनस NaCl की वैल्यू कितनी दी है 126.4। ये कितना हो जाएगा 9516 और 9 to 11 415,516.9 माइनस 126.4, 9 माइनस 4 5.0, 11 माइनस 2 9 और रिमेनिंग क्या 4 माइनस 1 3, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लैम्बडा m नॉट वैल्यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। Next application is calculation of degree of dissociation. As you know, degree of dissociation of an electrolyte or any substance can be represented by the letter alpha. Alpha represents the degree of dissociation. From the Arrhenius theory of electrolytic dissociation, it is observed that with increase in dilution, कंडक्टेंस इंक्रीजेज ड्यू टू डिसोसिएशन। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं कंडक्टेंस जो इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू मोर डिसोसिएशन। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट लैम्बडा m नॉट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड और कंसंट्रेशन इज जीरो। जब कंसंट्रेशन जीरो हो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बाय यूजिंग lambda m or lambda mc we can calculate the degree of dissociation of electrolyte. It can be given as alpha degree of dissociation is equal to lambda mc divided by lambda m naught. Lambda mc is the molar conductivity of an electrolyte at particular concentration C. Lambda m naught is the
limiting molar conductivity at infinite dilution. From this formula we can calculate the degree of dissociation. Third application is calculation of dissociation constant. Calculation of dissociation constant. Dissociation constant K जो है it can be calculated. K is equal to 1 minus alpha square divided by C alpha. 1 minus alpha square divided by C alpha. K is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. K is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. Key dissociation constant. C is the concentration, alpha is the degree of dissociation. Kc is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. C is the concentration of electrolyte, alpha is the degree of dissociation. Then by using this formula we can calculate the dissociation constant of an electrolyte. Next, fourth application is calculation of solubility of sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt. First of all, you must know about sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt are those salts which are soluble in solvent in very less amount. Sparingly soluble इसको हम बोल सकते हैं partially soluble. For example, AgCl, BaSO4 barium sulfate, PbSO4 lead sulfate. These are the examples of some salt which are soluble in water in very less amount. जैसे जैसे हम dilution करेंगे, even with dilution their solubility is further not increasing because these are soluble in less amount. So in this case the concentration at their सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब भी मानो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं किया जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. अगर इन स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट को हम उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सोल्यूबिलिटी के बराबर ही होगी बिकॉज दीज आर वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर. वी नो लैम्बडा एम नॉट इज इक्वल टू kappa इंटू 1000 डिवाइड बाई सी. सी मीन्स मोलरिटी कंसंट्रेशन. अभी मैंने क्या बोला है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सोल्यूबिलिटी के बराबर होती है. तो kappa इंटू 1000 डिवाइड बाई सोल्यूबिलिटी. हैंस क्रॉस मल्टीप्लाइंग सोल्यूबिलिटी कैन बी रिटन एज kappa इंटू 1000 डिवाइड बाई लैम्बडा एम नॉट. सोल्यूबिलिटी किसकी, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट. sparingly soluble salt. And the last application is calculation of ionic product of water. Ionic product of water. Ionic product of water जब we have already studied in class 11th. Ionic product of water is equal to Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus ion. This is the expression for ionic product of water. So by calculating the values of concentration of H plus and concentration of OH minus, we can calculate the value of ionic product of water. So these are the important applications of Collard's law which we have studied here. And these all applications are very important for exam purpose because based on these you will find numerical problems in the exams. So now we are going to write assignment for today's